Welcome viewers. A major political transition appears to be unfolding in Bihar. Veteran leader and Chief Minister Nitish Kumar has confirmed that he will contest the upcoming Rajya Sabha elections, a move that could bring an end to his long tenure as the state's Chief Minister and trigger a leadership change in the ruling NDA alliance. The development has sparked intense political speculation over who will replace him as Bihar's next Chief Minister, with several leaders from the Bharatiya Janata Party emerging as front runners. In a message to the people of Bihar, Nitish Kumar said he intends to become a member of the Rajya Sabha in the upcoming elections. He explained that throughout his political career, he had wished to serve in all 4 legislative forums, both houses of parliament and both houses of the Bihar legislature. If elected, he will complete the rare milestone, having previously served in the Lok Sabha, the Bihar Legislative Assembly, the Bihar Legislative Council. His shift to the Rajya Sabha could mark the end of a 2-decade era of leadership in Bihar, where he has served multiple terms as Chief Minister since 2005. However, the development has also triggered visible unrest within the party. Following reports of Chief Minister Nitish Kumar planning to move to the Rajya Sabha, several workers and supporters of the Janata Dal United have expressed strong dissatisfaction. गांधी जी के रिटर्न हो गए निश्चय मौसम में जन्म दिया। बिहार से टकराना बंद करो, हमारा सीएम कैसा हो, कैसा हो। ट्वीट करके कहा है कि हम वो जा रहे हैं, सही में राज्यसभा हो जा रहे हैं, कंफर्म हो गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक जो है विपक्ष के लोग कह रहा था कि सिंधे के तरह खेल होगा, अब वो सामने में आ रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, रोजे की हालत में मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बिहार को कोई अगर संभाला है, अगर कोई भी एक जनता को अगर कोई जो सहायता देने का काम किया है तो वह है नीतीश कुमार काम किया है। 2005 से लेकर अब तक में कोई ऐसा समुदाय वंचित नहीं जिनको लिए योजना बना के काम नहीं किया है। इसलिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता नहीं छोड़ने के लिए जा रही है, उनको जो है यहीं रहना होगा। The move is significant because it may open the door for the BJP to claim the Chief Minister's post in Bihar, something the party has long sought despite being the dominant partner in the NDA alliance in the state. According to observers, this transition could reshape the power balance within the NDA coalition currently led in Bihar by Nitish Kumar's party, the Janata Dal United. Reports also indicate the BJP is likely to push for a chief minister from the backward classes, aligning with its strategy to expand influence among OBC and EBC voters. Several BJP leaders are being discussed as potential successors if Nitish Kumar steps down. The key names include Samrat Chaudhary, currently considered one of the strongest contenders. The next is Nityanand Rai, Vijay Kumar Sinha from the JDU side. Names like Shravan Kumar have also surfaced, although reports suggest that BJP may ultimately take the top post. Another major political angle is the possible entry of Nishant Kumar into politics. Reports indicate he may soon take an active role within the JDU, with some speculation suggesting he could even be considered for a senior government position such as Deputy Chief Minister. However, no official confirmation has been made so far. Rajya Sabha elections are scheduled for mid-March 2026. Nitish Kumar is expected to remain Chief Minister until the election process concludes. After that, he may step down, paving the way for a new Chief Minister to be chosen by the NDA alliance.
Regarding this, Omar Abdullah reacted briefly to reports of Nitish Kumar moving to the Rajya Sabha, noting that Nitish was once part of the INDIA bloc and wishing him a constructive role in the upper house. हालांकि ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार की लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया, और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूंगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। सर, हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल के बीच में भी वोटिंग हो रही है। जनजी प्रोटेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट ओवरटर्न हुई, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम वहां पर जनरल इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत में बिना इलेक्शन के हुकूमत आप बना कैसे सकते हो? और जो मैं अखबारों के जरिए पढ़ रहा हूं, वहां एक नए नेता जो है उभर के सामने आए हैं। अब देखें नेपाल के लोग क्या फैसला करते हैं। Manoj Kumar Jha of the Rashtriya Janata Dal questioned the authenticity of Nitish Kumar's statement, claiming the message did not reflect the veteran leader's usual language and suggesting it may have been drafted in Delhi. साथ में उन्होंने यह भी कही है, गौर करने वाली बात है कि जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। एक बात कहूं, आपके इस ट्वीट का जिसका आपने उदाहरण दिया, तमाम बातें अपनी जगह, ये नीतीश जी की लैंग्वेज नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में उनके साथ रहे। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट है। मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूंगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया, ये दिल्ली में लिखा गया। मतलब ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। और अभी जो मैं विजुअल्स देख रहा हूं, लोग पचा नहीं पा रहे, खास करके इनका जो कोर आधार समूह है, उनको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा किसी ने कॉम्प्राडोर की भूमिका निभा दी है, किसी ने या कुछ लोगों ने मिल करके। तो जाहिर तौर पर अगर भाजपा को लग रहा है कि आज तीसरी हो गई, उन्होंने शिंदे साहब वाले वर्जन में काफी इम्प्रूवमेंट करके बिहार में एक नया संस्करण लाए हैं, जिसको मैंने आपके माध्यम से पहले कहा था, मादुरो वर्जन, देसी वर्जन ऑफ मादुरो। लेकिन इसकी गूंज, इसकी इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। रही बात हमारी लीडरशिप की, हमारी पॉलिटिकल एंटिटी की, तो हम संघर्ष करेंगे, आमने सामने की लड़ाई है। अब तो कहने के लिए भी नीतीश जी नहीं बचे, बीजेपी ने उनको गायब कर दिया। और ये क्षण ऐसा है जिसमें आपको मैं एक बात कहूं कि बिहार की धरती में इस तरह के प्रयोग महाराष्ट्र की तरह सफल हो जाएंगे, इसमें मुझे शंका है। Another reaction where Tejasvi Yadav, leader of the opposition in the Bihar Legislative Assembly seat, his party had anticipated the situation earlier. The Rashtriya Janata Dal leader alleged that the Bharatiya Janata Party had a long plan to weaken the Janata Dal United and suggested the delay was due to the BJP not achieving the expected 400 seats nationally. हम तो जान रहे थे, जब ये बात कहा था 28 जनवरी 2024 को कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, लेकिन 2024 में एनडीए को, खासतौर पे बीजेपी को जो 400 सीट का जो बात करती थी, वो उसके अनुकूल उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए 1 साल डिले हो गया, वरना पहले ही खत्म कर देता। आप उस स्टेटमेंट को उठा के देखिए। और चुनाव के दौरान भी हमने कई बार बोला है कि इनको ये लोग रहने नहीं देंगे। सदन में कई बार हम लोगों ने बोला है, पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर रखा। आपको पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है इनके साथ? हाँ, वो एकदम, हम तो शुरू से बोलिए ना, हम आपको तो तारीख गिना रहे कब कब हम बोले। आप जरा उठा के उसको भी देखिए। और भाजपा जिसके साथ रही उसको खत्म करने में लगी रही है। इसका एग्जाम्पल एक है महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए तो भी हमने इसलिए कहा था कि महाराष्ट्र में जो हुआ, शिंदे जी को आगे करके फिर जो है भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो उसी को रिफाइंड तरीके से बिहार में इन लोगों ने काम किया। काम वही किया, तरीका अलग।
इसमें बीजेपी की या कह सकते हैं कि जेडीयू के ही कई नेताओं के नाम आ रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, चिल्ला रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है देखिए, किसने कुछ किया ये सब? सब जान रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि सारे 3 आदमी हैं वहाँ। अब 3-4 उधर हो, जो लोग भाजपा के सामने मस्तक हो गए हैं, कुछ लोग भाजपा से जो आए हैं वो तो बर्बाद कर दिए इनको। उनके बेटा को लगता है सर आगे बढ़ाएंगे बीजेपी, और जो भी वो कहा जा रहा है कि निशान तबाएंगे बिहार? देखिए, निशांत को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन जो सारे 3 लोग हैं वो लोग आने नहीं दिए। कई लोग ऐसे हैं पार्टी में और पार्टी के बाहर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम आप खुलेआम लेते थे कि यही लोग पार्टी को हैंडल कर रहे थे, तो अब उनका क्या होगा जब नीतीश जी चले जाएंगे? अब आप देखिए आगे, अब देखिए क्या लूट मचता है बिहार में, किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बिहार को बर्बाद करेंगे। ऐसे ही अपराध इतना बढ़ा हुआ है जब से बीजेपी के हाथ में गृह मंत्रालय आया है। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 70,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस बार जो सीएजी का रिपोर्ट आया उसमें कहीं तालमेल ही नहीं है, कहाँ गया वो पैसा? अब बिहार के लोगों ने बर्बाद कर अब दिया। आगे की लड़ाई आप लड़ने के लिए तैयार है? लेकिन नीतीश कुमार को एक समाजवादी ना, हम लोग एकदम लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। हम लोग हमेशा उसके विचारधारा के खिलाफ रहे हैं और लड़ेंगे, उनको हराएंगे। Akhilesh Prasad Singh, Member of Parliament from the Indian Congress National Congress seat, the development appeared consistent with political strategy, adding that such a move had been anticipated. तो नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के लीडर हैं, उनका जो फैसला है तो उसमें हम लोग कहाँ हैं? हम लोग न 3 में हैं न 13 में हैं। लेकिन हम लोग कैंपेन के दौरान भी ये बात कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल डिजाइन है, चाहे वो अकाली दल का फस्ल देखिए, शिवसेना के साथ उनका बर्ताव देखिए, तो ये समझा जा सकता था। और खास करके बीजेडी के साथ उड़ीसा में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया, वही उसी पॉलिटिकल डिजाइन के तहत इनको भी राज्यसभा वोट तो निश्चित रूप से नीतीश जी के नाम पर लिया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई उस तरह का लीडर था नहीं जिनके नाम पर वोट मिलता बिहार में, तो ये सच्चाई है। लेकिन नीतीश जी का तो अपना फैसला है, इसमें मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि इसमें साजिश क्या है। जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही फैसला किया, खुद अपना कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं राज्यसभा, तो इसमें साजिश नहीं, सहमति में देखता हूं। तो अब बिहार में जो क्या लगता है आपको कि Another reaction where KC Tyagi of the Janata Dal United said that Nitish era can never end, crediting the Bihar Chief Minister with building a new Bihar. नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, ऐसे ही युग युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। ये जाहिर है कि सदन की भी गरिमा बढ़ेगी, बहस का स्तर ऊंचा होगा, और यूं भी 2001 में अपनी ख्याति के चलते और अपने अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से Latest reports indicate that Nitish Kumar has formally entered the Rajya Sabha race, filing his nomination from Bihar as candidate of the National Democratic Alliance. The nomination was filed in Patna in the presence of Union Home Minister Amit Shah, marking a significant step in the ongoing political transition in the seat. Nitish Kumar's transition to the Rajya Sabha would mark the end of one of the longest political eras in Bihar's history. The shift could trigger a major realignment within the NDA, potentially bringing the BJP to the Chief Minister's chair in the state for the first time in this coalition arrangement. With leadership negotiations underway and multiple contenders in the race, Bihar now stands on the verge of a significant political transition that could reshape the state's power structure ahead of future elections.